वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नए चैप्टर का आगाज जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। व्हाट इज प्लांट फिजियोलॉजी? ओके, प्लांट फिजियोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वाइटल प्रोसेसेस। इट इज द स्टडी ऑफ वाइटल प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिज्म. Study of vital processes and metabolism of plants is known as plant physiology. ठीक है? What are vital processes and what's metabolism? Vital processes are those processes without which the survival of living systems is not possible. Like respiration. Respiration is a fundamental process. हर एक living organism, हर एक living cell respiration करती है. तो इस रेस्पिरेशन के बगैर कोई भी लिविंग सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. इसको हम बोल सकते हैं वाइटल प्रोसेस. एक्सक्रीशन है फॉर एग्जांपल, इट्स ए वाइटल प्रोसेस. इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है. This vital process means those processes without which the survival is not possible. And what about this metabolism? Metabolism means sum total of all the reactions. सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे लिविंग सेल्स में होते हैं, इन सारे सेल्स का इकट्ठ, इन रिएक्शंस को हम इकट्ठे नाम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. शाबाश. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ SUM, सम टोटल ऑफ all reactions, sum total of all reactions that occur in a living cell, that occur in a cell is called as metabolism. सारे रिएक्शन जो लिविंग सेल्स में होती है, उन सारे रिएक्शंस का नाम है मेटाबॉलिज्म. हमारे सेल्स के अंदर नॉर्मली दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं. अगर हम इस मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म की बात, मेटाबॉलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस that occur in living cells. मेटाबॉलिज्म में दो किस्में हैं. वन इज कॉल्ड एज catabolism, and then what we call as anabolism. Catabolism and anabolism, ये दो किस्म है मेटाबॉलिज्म के. Now catabolism means destructive processes. destructive बोले तो मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे, these are destructive processes. By word destructive I mean those processes where bigger molecules, where larger molecules are broken down into smaller, simpler ones, we say. For example, मैं आपको बोलूं digestion में क्या होता है? Bigger molecule, for example polysaccharide is broken down into sugars. A fat molecule is broken down into smaller fatty acids. That's what we call as destructive process, a catabolic process. Anabolism में क्या होता है? Anabolism is a constructive process. मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, it is constructive processes. Constructive processes I mean where smaller molecules combine together and form a bigger, larger biomolecule, we say. What we call as anabolism. Means catabolism means the destructive process are those processes where larger molecules, bigger molecules are broken down into smaller, simpler ones. And anabolism means the constructive processes where smaller molecules combine together and give rise to a bigger, larger biomolecule. तो मैं अगर आपको समझाऊं सिंपल अंदाज में, फॉर एग्जांपल हम मिलाएंगे A + B + C. हमने 5-6 चीजें आपस में मिलाए, हमें एक नया चीज, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. इसे हम छोटी छोटी चीजों को आपस में जोड़ते हैं. इस अंदाज में, सिंपल अंदाज में हम समझाएंगे. That's what we call as anabolic process, constructive process. Smaller molecules combine together, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है. तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में दिस इज, अगर हम एक हाउस करेंगे कोलैप्स, डिग्रेड करेंगे, इसके जो ये ब्रिक्स होते हैं अलग अलग करेंगे. This is what I mean by destructive or catabolic process. Similar what happens in our living cells. Smaller molecule आपस में जुड़ जाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है. कभी कभार बड़ा मॉलिक्यूल ही ब्रोक डाउन होता है, इट्स ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर, सिंपलर वंस. दिस इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. हाँ, कैटाबॉलिज्म में क्या है? कैटाबॉलिज्म नॉर्मली एनर्जी निकलती है. इट इज, वही से इट इज एक्सर्गोनिक.
by exergonic I mean exothermic, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एनर्जी जनरेटिंग. The energy exothermic, that is energy producing या energy generating processes. Energy generating processes. तो यहाँ पे क्या है? These are exergonic, these are endergonic. ENDERGONIC, endergonic. Endergonic बोले तो that is the energy investing. ऐसे इसमें एनर्जी लगती, ऐसे एनर्जी रिक्वायरिंग, इट रिक्वायर्स एनर्जी. एंडरगोनिक मीन्स इट इज एंडोथर्मिक अदरवाइज. ओके, तो कैटाबॉलिज्म मीन्स द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड एनाबॉलिज्म मीन्स कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस. By destructive I mean these large molecules are broken down to smaller molecules, and in anabolism, constructive process, the smaller molecules combine together give rise to a larger biomolecule. And these catabolic processes are normally exergonic in nature, means they are energy generating, they give rise to the energy. At the end of the reaction, you say the net amount of ATP is generated, it's released, energy is released here. In anabolism, they are endergonic, means they are endothermic, they require energy to form to synthesize a bigger biomolecule from the simpler ones. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कैटाबॉलिज्म में हमारे पास एक प्रोसेस है व्हाट वी कॉल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में सीधे लिखूंगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन बोले तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का होता है डिस्ट्रक्शन, ब्रोक डाउन, आई मीन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में. एनाबॉलिज्म में अगर मैं एग्जांपल आपको बोलूं दैट इज फोटोसिंथेसिस. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज यूज्ड. इसमें हम क्लोरोफिल का इस्तेमाल भी करते हैं. तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है वाटर के साथ और शुगर्स बन जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ जाते हैं, आपस में उनको सिंथेसिस के द्वारा इन दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है केमिकल रिएक्शन में यूजिंग द सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल डज द जॉब. तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं, आपस में शुगर्स बन जाते हैं. इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस. तो क्या है प्लांट फिजियोलॉजी? शिवाश, प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिज्म. What are these vital processes? Those biological processes without which their living systems cannot operate. जिनके बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, they are called as vital processes. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एक वाइटल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन सारे लिविंग सेल्स के लिए एक वाइटल प्रोसेस है. तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मीन्स all the reactions together which operate in a cell, which occur in a cell. ऐसे sum total of all the chemical reactions that occur within a living cell, that's called as metabolism. Metabolism में दो किस्में हैं. We have catabolism and anabolism. दो branches के. Catabolism we mean these are destructive processes. These larger molecules are broken down to smaller, simpler ones. And anabolism, it's a constructive process where these larger molecules, bigger molecules are broken down to smaller molecules. And these catabolic reactions are normally exergonic, they are energy generating. And anabolic reactions are normally endergonic, they are energy requiring, they require energy, net amount of energy is needed. So respiration एक catabolic process है, whereas photosynthesis is an anabolic process. Okay? तो कभी कभार आपने देखा होगा, एक टर्म आपने देखी होगी, that's called as amphibolic. एम्फीबॉलिक. एम्फीबॉलिक क्या है? एम्फीबॉलिक कभी कभार टर्म पूछ जाते हैं. एम्फीबॉलिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बिहेव करेगा ड्यूअल, विच विल बिहेव बोथ एज कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक. इसका आधा पार्ट जो है वो ऐसे इंटरमीडिएट्स, ऐसे सबस्ट्रेट्स प्रोड्यूस करेगा जो लगेंगे कैटाबॉलिज्म में, या कभी कभार आधे जो इंटरमीडिएट्स के होंगे अदर सबस्ट्रेट्स वो बिहेव करेंगे एनाबॉलिक प्रोसेसेस में. मीन्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म टुगेदर, यानी कि जिन प्रोसेसेस का होगा ड्यूअल नेचर, दोज केमिकल रिएक्शंस और वी से अदरवाइज दोज प्रोसेसेस within the living cell which behave both as catabolic and anabolic, they are called as amphibolic. Amphibolic reactions have dual, I say they behave like the dual nature, that is they have both catabolic and anabolic nature. जिस तरह आपने सुना होगा नाम क्रिब साइकिल.
TCA साइकिल जिसको हम बोलते हैं। क्रिब्स साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि क्रिब्स साइकिल बिहेव करता है एनाबॉलिक भी और ये कैटाबॉलिक भी बिहेव कर सकता है। Means amphibiolic reactions are those reactions which behave both as catabolic and anabolic. Okay, Krebs cycle is a classical example for amphibiolic process. हम आगे देखेंगे डिटेल में। और यहाँ तो यह है थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। अब शॉर्टली मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ आपको। इस प्लांट फिजियोलॉजी का आगाज किया था एक साइंटिस्ट ने, फोटोसिंथेसिस पे उसने काम किया है। उसका नाम है स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स साइंटिस्ट का नाम है स्टेफन हेल्स। ही इज अदरवाइज कॉल्ड एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। He is otherwise called as father of plant physiology. Stephen Hales is otherwise called as father of plant physiology. और एक और हमारा साइंटिस्ट है भारत से, उसको हम बोलते हैं J.C. बॉस, जगदीश चंद्रा बॉस। इसने असल में आगाज किया इस साइंस का भारत के अंदर। That's why he is otherwise called as father of Indian plant physiology. Father of Indian plant physiology. जैसे बॉस, he worked on a plant. इसने एक प्लांट पे काम किया है, आगे देखेंगे हम वो भी। उसका नाम है, उस प्लांट का नाम है Desmodium gyrans. Desmodium gyrans, ये प्लांट का नाम है, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स को हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं जब हम हाथ से लिखते हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड, तो मैंने अंडरलाइन इसको किया। डेस्मोडियम गायरनस एक साइंटिफिक नेम प्लांट का, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन टेलीग्राफ। इस प्लांट का इंग्लिश नेम है इंडियन टेलीग्राफ। इसी प्लांट पे काम किया, एक कंसेप्ट दिया है जैसे रूट प्रेशर थ्योरी। आगे देखेंगे हम वो रूट, आई मीन नो रूट प्रेशर, दैट्स व्हाट वी कॉल एज एक थ्योरी है, इट्स कॉल्ड एज पल्सेशन थ्योरी, रादर इट्स कॉल्ड एज पल्सेशन थ्योरी। आगे हम देखेंगे वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे व्हाट वी कॉल एज एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप में एक थ्योरी हम देखेंगे, इट्स कॉल्ड एज पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी पे काम किया जैसे बॉस ने। एनीवे, so Stephen Hales is otherwise called as father of plant physiology, and J.C. Bose is otherwise called as father of Indian plant physiology. He worked on a plant called Desmodium gyrans, otherwise called in English language it's called as Indian telegraph. Okay, Indian telegraph. अब देखो, हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे पहले चैप्टर का आगाज। प्लांट फिजियोलॉजी में हम करेंगे पहले चैप्टर का आगाज, जिसका नाम है, तो हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक वी मस्ट स्टार्ट विद रेस्पिरेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। वी बिगिन विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारे चैप्टर का नाम होगा अगले कुछ दिनों के लिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। थोड़ा आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन? देखो, एक रेस्पिरेशन हो गया एक गैस एक्सचेंज, और आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग, ये एक तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है असल में। लेकिन हमारा चैप्टर इज नॉट रेस्पिरेशन, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन विद इन द सेल। अब सेल लेगी सांस। एक तो हम लेते हैं सांस, नाक से सांस लेते हैं, ये भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम करते हैं काम। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन असल में सेल कैसे काम करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल कैसे करते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, ऑक्सीजन फूड में, और कैसे रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में असल में? देखो, जब सेल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर मींस सेल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसमें हम करते हैं फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। लेकिन यहां बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, कैसे सेल लेती है ऑक्सीजन और क्यों लेती है,
कहाँ पे सेल के अंदर लगता है? क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं? जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किस जगह हमें एक ऑक्सीजन लगता है? क्यों ये ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी? ये कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है जो हम छोड़ते हैं? ये हम देखेंगे डिटेल में। क्या अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जी पाएंगे? कैन वी सर्वाइव? तो ये सारा कुछ, इन सब चीजों का आपको जवाब मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें आपको एक चीज बोलूं, जो ही हम फूड लेते हैं हम बकल कैविटी में, माउथ में, इसको हम मैस्टिकेट करते हैं। अल्टीमेटली इसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू पहुंचता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक में भी इसकी पार्शियल डाइजेशन होती है। अल्टीमेटली इंटेस्टाइन्स में ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम, अल्टीमेटली इंटेस्टाइन्स में इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। जो ये फूड है, ये फूड, इसमें बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। उनकी डाइजेशन, उनका ब्रेकडाउन होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है ये। तो अल्टीमेटली जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सक्रोज खाया, आपने पॉलीसैकेराइड स्टार्च खाया, तो अल्टीमेटली इसकी डाइजेशन हो जाएगी, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और विलाई के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। जो माइक्रो विलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, वहां से एब्जॉर्प्शन होगी इस ग्लूकोज की, शुगर मॉलिक्यूल की। ये शुगर मॉलिक्यूल आ जाएगा इंटेस्टाइन्स के थ्रू, इस माइक्रो विलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड के अंदर पहुंचेगा। और ब्लड इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, जो डाइजेस्ट हो गया है ऑलरेडी, जिसकी डाइजेशन हो चुकी है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रैप करेगा। अब ये ग्लूकोज, ये व्हाट वी कॉल एज ब्लड के अंदर जो है, ब्लड इसको पहुंच जाएगा टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज बने हुए सेल्स के, तो सेल्स के अंदर पहुंचाया जाएगा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वो सेल को मिलेगा ये ग्लूकोज, ये फूड मटेरियल। अब सेल इसको करेगी ब्रेकडाउन। सेल के अंदर इस ग्लूकोज का जो डाइजेशन में निकले स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये एब्जॉर्ब होंगे माइक्रोविलाई के थ्रू, ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड के थ्रू अल्टीमेट सप्लाई हो जाएंगे टिश्यूज में, सेल्स में, और सेल्स के अंदर इनकी हो जाएगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये जो आपने फूड खाया, जो भी खाया फूड, इसकी डाइजेशन, इसका ब्रेकडाउन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक ये पहुंच गया ब्रेकडाउन फॉर्म में, स्मॉलर फॉर्म में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। जो ही आ गया ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम इसको पहुंचाते हर एक टिश्यू के पास, सेल के पास, और सेल इन्हीं डाइजेस्टेबल मटेरियल्स की करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आपने ऑक्सीजन लिया, हमने सांस लिया, ये कहां से आ गया? विंड पाइप के थ्रू आ गया, ट्रैकिया के थ्रू, अल्टीमेटली किस में? लंग्स में आ गया ऑक्सीजन। लंग्स में एल्वियोल में होता है डिफ्यूजन इस गैस का, ऑक्सीजन का, और डिफ्यूजन होता है किसमें? ब्लड के अंदर। जो ब्लड में डिफ्यूज हो गया, ब्लड में आ गया ऑक्सीजन। ब्लड में ऑलरेडी क्या था? वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो आपने डाइजेशन के फॉर्म में लिए थे। तो अल्टीमेटली ये शुगर भी, जो शुगर मॉलिक्यूल पहुंच गया सेल्स में, ये ऑक्सीजन जो आपने लिया यहां से, ये पहुंच गया लंग्स में, लंग्स में डिफ्यूजन हो गया, ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगा यही ऑक्सीजन सारे टिश्यूज में, सारे सेल्स में। वो जो ग्लूकोज लिया था या जो फूड मटेरियल लिया था सेल ने, वो उसी के लिए इस सेल को चाहिए ये ऑक्सीजन जो आपने लिया। इसी ऑक्सीजन की मदद से उस फूड का फिर से ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो हमारे एंजाइम्स नहीं कर पाए डाइजेशन, हमारे एंजाइम्स ने बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया, अल्टीमेटली ये पहुंच गया ब्लड में, ब्लड से पहुंच गया टिश्यूज में, सेल्स में। अब सेल्स में इस ग्लूकोज को फिर से ब्रेक डाउन होना है, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। तो ये ऑक्सीजन उसी में जरूरत होता है। ये ऑक्सीजन की मदद से इस ग्लूकोज का, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगा, वाटर जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन है क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन इट इज द ऑक्सीडेटिव, या हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इट्स द ऑक्सीडेटिव breakdown. Cellular respiration means oxidative breakdown of molecules. ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? ये फैट मॉलिक्यूल हो सकता है, ये हो सकता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये हो सकता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स to generate energy
in an enzymatically in an enzymatically controlled manner. Enzymatically controlled manner. This is cellular respiration. क्या होता है असल में? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकडाउन होता है फूड का नॉर्मली. तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू जनरेट एनर्जी in an enzymatically controlled manner is cellular respiration. ठीक है. इस cellular respiration में जो सबस्ट्रेट लगेगा, जिस चीज का ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, जिसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे एनर्जी निकल जाएगी, उस सबस्टेंस को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. व्हाट इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? शाबाश. Respiratory substrates are those substances that are oxidized, that are broken down during respiration या during cellular respiration. जिन चीजों की हो जाएगा ब्रेकडाउन या जिन चीजों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिन चीजों की रेस्पिरेशन हो जाएगी, उन चीजों को हम नाम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. ओके. मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन लिविंग सेल्स इज ग्लूकोज. Glucose is the most common respiratory substrate in the living cells. देखिए respiratory substrate हो सकता है सक्रोज भी प्लांट्स में, ये हो सकता है लिपिड मॉलिक्यूल भी, लिपिड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं. बट most common respiratory substrate in living cells is glucose, but it can be lipids, these fat molecules, they can be proteins, amino acids and so on. Respiratory substrates. अब देखो एक और चीज है यहां, रेस्पिरेशन के 4 किस्में बोलूंगा शॉर्टली. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की 4 किस्में बोलूंगा शॉर्टली, शॉर्ट में बोलूंगा. ABCD सिंपल वर्ड्स में है. पहला टाइप है रेस्पिरेशन का, दैट्स व्हाट वी कॉल एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को तब हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, ये होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ये होंगे फैट्स या एक्सटर्नल प्रोटीन्स. एक्सटर्नल प्रोटीन बोलते हैं जो हम प्रोटीन ले सकते हैं, फिश में प्रोटीन रिच होते हैं, या फॉर एग्जांपल दीज पल्सेस, लिग्यूम्स. ओके. बाहर में हम बोल सकते हैं व्हाट्स फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच respiratory substrates are carbohydrates or fats. Such type of respiration is called as floating respiration. जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की हो जाती है रेस्पिरेशन, इनका ब्रेकडाउन होता है, इनसे एनर्जी निकल जाएगी, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. लेकिन कभी कभार अंडर स्कैर्स कंडीशंस, अंडर स्टार्विंग कंडीशंस, वी हैव प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन ये कब होता है? जब स्टार्वेशन होगी, जब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, फैट्स नहीं होंगे, एक्सटर्नल प्रोटीन्स नहीं आएंगे, तो तब जो सेल के अंदर अपने इंटरनल अपने प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करने पे मजबूर हो जाती है सेल. जब अपने ही प्रोटीन्स को सेल डिग्रेड करेगी, अल्टीमेटली सच सेल्स आर अल्टीमेटली किल्ड, इनकी डेथ हो जाती है. मीन्स हियर प्रोटीन्स, I say cellular proteins act as a respiratory substrates. It occurs only under starvation. So under starvation, when proteins are degraded, broken down as respiratory substrates, it is called as protoplasmic respiration. ये normally नहीं होता है, normally floating respiration follow करते हैं. एक और है aerobic respiration, जो आपने सुना है already. Aerobic and aerobic. Okay, aerobic है एक, दूसरा है एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या नॉर्मली हम देते हैं, इट रिक्वायर्स O2 ऑक्सीजन. ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, दैट्स कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन.
असल में लास्ट पे सारा कुछ काम जो कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकल गए, एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन अल्टीमेटली। तो हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में हम बोलेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, दैट्स कॉल्ड एरोबिक लेमन्स लैंग्वेज। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर O2 इज नॉट इन्वॉल्व्ड, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन के बदले दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नाइट्रेट से, सल्फेट से, या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल हो सकते हैं इन केस ऑफ फर्मेंटेशन। आप सिंपल अंदाज में फिलहाल याद रखेंगे। आगे असल में एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन अलग अलग चीजें हैं, बट इन लोअर क्लासेस वी से एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अदरवाइज कॉल्ड फर्मेंटेशन। हालांकि डिफरेंट चीजें हैं, आगे हम बोलेंगे, लेकिन फिलहाल आसान भाषा में हम यही बोलेंगे। Floating respiration means type of respiration where carbohydrates and fats are oxidized. In protoplasm respiration, cellular proteins are oxidized. In aerobic respiration, oxygen is consumed, oxygen is required. In anaerobic respiration, oxygen is not involved. That's it. तो ये है cellular respiration, इसके types. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे, we will be talking about the mechanism of respiration, that is glycolysis and so on. Thank you very much.